Uh, this is day 2 of our international conference and our first plenary online, our first panel online. We are very delighted to have with us the researcher from Third Eye, Astha Sharma, who will be moderating this panel for us today. Are you able to hear me clearly? Okay. I'm very also pleased to welcome the panelists for today. Mayuk, who is a PhD candidate at the University of Southern California. His work reflects on art, mythology, and belonging to a South Asian queer voice. His prose has appeared or is forthcoming in The Audacity by Roxane Gay and Calfictions Anthology, The Third Eye, and GNL Review, among other places. We're also joined by Durga from Seldo village in Wardha, Maharashtra. She belongs to the Gond tribe. After completing her graduation and MPhil in social work, she is pursuing now a PhD at the Tata Institute of Social Sciences in Mumbai. She likes to travel and help people. She's also been a ward member in her village for the last 5 years. Her area of research looks at the health and education of girls and women in tribal ashram schools. Our next panelist is Sejal Rathwa from the Rathwa community in Gujarat. She runs Adim Samvad, which is a YouTube channel that highlights Adivasi and Adivasi culture and perspectives. She also works as a district coordinator with the Bhasha Research and Publication Center, where her job is to document the culture of the denotified tribes. Sejal has also been a member of the first cohort of the Zone, a leadership school that focuses on developing grassroots leaders from marginalized communities. Our moderator today is Astha Bhamba from the Third Eye, who is a researcher. She is a former literature student and says she now shifts between different classrooms. Thank you and welcome to all the panelists. Our panel today is aimed at understanding how access to language in an academic space functions differently for different people. I'll now let Astha take over and moderate the rest of the panel. Thank you everyone for being here. Have a great panel. Thanks. Vijita, someone just messaged me saying they can't view anything. So can we check if the stream is working? On the YouTube, it usually takes time. It's working. It's working now. Okay. Yeah, I checked. It's working. Thank you. Okay, I'll just tell them. Thanks, Vijita, for this introduction. All of us are very delighted to be here at the panel and at the conference. All Mayuk, Durga, and Sejal, all three of us were part of the Third Eye's EduLo program, which is the program which mentored 12 writers and image makers to document their experiences of learning. Third Eye is a feminist think tank, and we take out editions every quarter. So as part of our education edition, Mayuk, Sejal, and Durga wrote and documented their learning journeys at different points in time and in life for us. And as part of this discussion today, we are talking of but not limited to issues of access, inclusion. What does it mean to navigate academic spaces from different standpoints, different experiences? We all felt that Mayuk, Durga, and Sejal would be very lovely to speak to today. I would like to start by setting the context a little, that at the Third Eye and also as part of this panel and our panelists, we want to explore questions of language in the classroom. कि एक क्लासरूम में भाषा क्या खोलती है, भाषा क्या डिस्गाइज करती है, हमारा भाषा के साथ किस तरह का रिश्ता बनता है, what kind of relationships do we form with language in our meaning making, in our teaching, learning processes, etc. And does language allow us to leave our past? Does language allow us to imagine new futures? So, इसी संदर्भ में all three of our panelists will have a conversation today. I'd like to start by asking Sejal, Mayuk, and Durga if they can, give a little introduction to themselves, a little window into their lives through language, in the sense of
आप समुदाय में, परिवार में और क्लासरूम में किस किस भाषा के साथ आपने कौन कौन से स्तर पे क्या क्या भाषा का इस्तेमाल किया, और आप कहाँ से आते हैं, और आपके हाई स्कूल में, कॉलेज में, आपके काम में, आपके सीखने सिखाने में कौन कौन सी भाषाएं आई और किस तरह वो भाषाएं बदली, या कभी इंग्लिश आई या कभी आपकी अपनी खुद की भाषा आई, तो उससे अगर हम शुरुआत कर सकते हैं। मायूक, इफ यू वांट टू गो फर्स्ट। Yeah, I definitely go first. So, hi everyone. Thank you so much. Of course, and I'm in the middle of Guwahati traffic, as you can see, and communing about the classroom in transit, and that's quite a great metaphor. In terms of language and its acquisition and my experience with language, I grew up in Assam, in Guwahati, and I went to school in DPS Guwahati, and then I did my high school in DPS Puram in Delhi. And then I went on to do my bachelor's at Ashoka University. And then my master's, just graduated from North Carolina State University. And the common denominator would be, as you would know from my tongue, is English. And a part of growing up was to be able to acquire English in the way that I have, with the fluency that I have at this point of time in both reading and writing. But at home, I speak in Assamese. With my friends, I speak in Hindi. And it's interesting because as soon as I landed in Assam, which I have after 2 years, the first thing I noticed was, oh wow, it's so great to hear Assamese again all around me in a robust way. It was an overwhelming, how should I say, odor of language that I am enjoying at this moment in time. And in terms of, I teach as well, all mostly taught in English instructed institutions. It's interesting because when you're going to the US, you're constantly talking about giving a TOEFL or an IELTS. You're constantly being asked to justify how fluent your English is, even though so much of your training in order to find access is in English. So it's always interesting how that is a challenge as well as a qualifier for a lot of people in the global South. So that's mostly, that's how it qualify as a snapshot of my relationship with language. It is fraught, but we will open that as we move on in the panel. So Thanks, Mayur. Sejal, would you want to go? सभी को जोहार। और आज बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि भी है, तो उसको भी नमन। मेरा अगर मैं बताऊं तो मैं गुजरात के छोटाउदेपुर जिले से हूँ, जो कि एक आदिवासी जिला है। और मेरा जो पढ़ाई है वो पहली और दूसरी कक्षा तक मैंने गांव में ही किया। तो गांव की ही भाषा, गांव का ही एनवायरनमेंट, तो जो मेरी कम्युनिटी की भाषा है राठवी, तो उसी में मैंने किया। और साथ ही मेरे आसपास की जो कम्युनिटी है, नायक, ढाणक और तड़वी कम्युनिटी, तो उनकी अपनी खुद की भाषा भी है। नाइकी है, देहवाली भीली है, भीली है। तो ये सारी भाषाओं के बीच मेरा पहली और दूसरी कक्षा गई। तीसरी कक्षा से जबकि मेरे पापा जो है पुलिस में, पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो उनका ट्रांसफर छोटाउदेपुर में हुआ। तो मैं छोटाउदेपुर में ही गांव में थी, मेरे खुद के गांव में। वहां से फिर मैं मेरे थोड़ा शहरी नगरी विस्तार था, वहां पे आई। और वहां पे मैंने तीसरी और चौथी कक्षा, जहाँ पे मुझे गुजराती इंट्रोड्यूस हुई, तो गुजराती में मैंने किया, गुजराती मीडियम से ही किया। फिर मैं 5वीं से 10वीं कक्षा तक मुझे कॉन्वेंट स्कूल में भेजा गया, जहाँ पे मैं हॉस्टल में रह के और डॉन बॉस्को स्कूल में मैंने पढ़ाई की। तो वहां पे मुझे इंग्लिश और गुजराती दोनों ही इंट्रोड्यूस हुई। इंग्लिश, जो कि मेरी स्कूलिंग जो थी वो गुजराती मीडियम से थी, तो हाँ गुजराती। और फादर्स और जो सिस्टर्स थी और जो हमारे मेंटर थे, ब्रदर्स थे, वो इंग्लिश में बातचीत करते थे, तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी इंट्रोड्यूस हुआ। फिर जाके 11th-12th के लिए मैं छोटाउदेपुर को छोड़ के नडियाद गई, जहाँ पे सेंट मैरी स्कूल में। तो वहां पे टोटली मेरा क्षेत्र भी बदला, मेरा स्कूल भी बदला और पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया। क्योंकि 5वीं से 10वीं तक
मैं एक हॉस्टल में रहती थी, तो एक कुएं जैसा माहौल था। तो वहां पे जितना सीखने को मिला, जितना आसपास देखने को मिला, तो वही देखती थी। फिर मैं बाहर गई, तो वहां पे मुझे दूसरी कम्युनिटी, दूसरी आदिवासी कम्युनिटी से भी मिलना हुआ, दूसरी अदर कम्युनिटीज से भी मिलना हुआ, तो उनकी भाषाएं, तो उनके बीच मुझे मैंने 11वीं और 12वीं की। उसके बाद मैं जब कॉलेज में गई तो टोटली इंग्लिश मेरे लिए था, जो कि एक चैलेंजिंग भी था। और उसके बाद में जर्नलिज्म की पढ़ाई की, तो जर्नलिज्म भी पूरा इंग्लिश में ही था, तो पूरा इंग्लिश मेरे लिए एक चैलेंज हो गया था। उसके बाद जब अभी मैं जो काम कर रही हूँ, जिन जिन कम्युनिटी के साथ काम किया, जिस फेलोशिप में मैं रही, तो वहां पे मैं अलग अलग भाषाओं बोलने वाले लोगों से मिली। कन्नड़ है, फिर बैरी है, और हिंदी है, और मराठी है, और उनकी खुद की भी आदिवासी भाषा है, जैसे कोरकू भाषा है, गोंडी भाषा है। तो इन सभी लोगों से मिलना जुलना हुआ, उनसे बातचीत हुआ, तो थोड़ा थोड़ा उनकी भाषाएं भी सीखी, मेरी भाषा भी उनको दिखाई। उसके बाद अभी जो मैं काम कर रही हूँ भाषा संस्थान के साथ, वो घुमंतु समुदाय के साथ है। तो घुमंतु समुदायों में मैं 3 स्टेट में उनके कल्चर, 3 स्टेट में, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 3 स्टेट में मैं काम करती हूँ। और उनके वहाँ के अलग अलग घुमंतु समुदाय, जैसे कंजर है, सांसी है, कालबेलिया है, नट है, छारा है। तो इन सारे समुदायों की अपनी खुद की भी भाषा है, जैसे बावरी समुदाय की बावरी भाषा है, कंजर की कंजर भाषा है, पारधियों की अपनी खुद की भाषा है। तो मैं अभी हिंदी, गुजराती, इंग्लिश ये सब तो सीखी समझ ही सकती हूँ, पर ये सारी भाषाओं के साथ भी मेरा नाता रहा है अभी तक। तो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग माहौल के हिसाब से मुझे अलग अलग भाषाओं के साथ मिलजुल बढ़ा मेरा। तो फिलहाल मैं जो अभी आपके साथ बोल रही हूँ, मैं हिंदी इसीलिए मतलब बोल पा रही हूँ क्योंकि इन सभी लोगों के साथ मैं हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। उनकी खुद की भाषा भी है, उनकी खुद की भाषा मैं भी सीखती हूँ, और हिंदी उनको भी थोड़ा नया है, तो हिंदी एक मेरा अच्छा मीडियम हो गया है। तो अभी मैं हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, और उनकी जो जिन जिन समुदायों के साथ काम करती हूँ, तो उनकी अपनी भाषा, तो ये सारी भाषा मैं जानती भी हूँ पर बोल नहीं पाती हूँ, ये अलग बात है। तो ये अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भाषा, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग लोगों के साथ मेरा काम है, और मैं उनके साथ काम करती हूँ। Thanks, Rachel. It really gave us an extensive overview of, and it's really amazing the amount of interactions आपकी किन किन भाषा और किन किन वो भाषा बोलने वाले लोगों के साथ है, एक तरह का रिश्ता बना है। हम दुर्गा आप अगर हैं, अगर आप बोलना चाहें, एक परिचय देना चाहें। Yes, I'm I'm belong to Wardha, and I'm staying in a village, one of Seldo. There I'm staying with a tribal area, and I did my all the education from the first standard to graduation in a Marathi medium. After that, my MPhil and MSW I did in Hindi medium, and now I'm starting in English medium my PhD in Tata Institute, because here not having any option to do PhD, so I am doing in English medium. So it is difficult to learn English, and it means that first of all in the starting it's get lot of difficulties. After that, I learn lot of things, and now also I'm learning. Yeah, and I was a ward member in my village also. Uh, और और हमारी जो भाषा है गोंडी भाषा है, बिकॉज ऑफ मैं गोंड कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे गोंडी आती है। भाषा का अगर मेरी जर्नी रहा तो देखा जाए कि मैं स्टार्टिंग में हमारे घर में मेरे मम्मी पापा या हमारे जो एरिया है वहाँ पे गोंडी भाषा बोली जाती है, तो हम लोग पहले स्टार्टिंग में गोंडी बोलते थे। उसके बाद में मराठी स्कूल जाने के बाद मराठी में एजुकेशन हुआ तो मराठी में ही बात करते थे। देन हिंदी, MSW और हिंदी और अभी इंग्लिश।
ऐसा भाषा का मेरा जर्नी रहा, मतलब 4 भाषाओं का। थैंक्स दुर्गा। सो आप तीनों ने अलग अलग भाषा के साथ किस अलग अलग पॉइंट पे क्या रिश्ता बना, कब कौन सी भाषा छोड़नी पड़ी, कब कौन सी भाषा अपनानी पड़ी, तो इन सब का एक्सपीरियंस और अनुभव क्या रहा है, स्पेशली हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की क्लासरूम में। एक आप भाषा पीछे छोड़ते हैं क्योंकि चाहे सोशल मोबिलिटी कहें, चाहे एकेडमिक करियर में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर मेन स्ट्रीम की भाषा अपनानी पड़ती है। तो एक तो उसमें चैलेंजेस हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, बट एट द सेम टाइम तो वो चैलेंजेस और कॉन्ट्रडिक्शंस क्या रहे हैं, और उसी के साथ साथ क्या कुछ मजे के मोमेंट्स भी रहे हैं, जैसे कि ऐसा कोई पॉइंट था when you were studying English or a mainstream language which you didn't really want to, which you were only studying because you felt it would help you go forward in your career, or you were forced to do it to be able to, assimilate into the mainstream. But while doing so, were there any moments where you felt ki I'm not feeling the pressure of wanting to learn this for career? I actually enjoy doing this in a classroom space. So वो क्या चीजें थी जिन्होंने ये मजे के moments possible बनाए हैं? Was there a particular teacher? Was there a moment in a classroom? Was there a particular curriculum where you felt okay, I'm learning English, I'm enjoying reading literature, मुझे साहित्य पढ़ने में मजा आ रहा है, जिस तरह मुझे अपनी भाषा में भी पढ़ने को मजा आए। तो वो कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जिसमें ये पॉसिबल बना। मायू, डू यू वांट टू गो फर्स्ट और दुर्गा? I could. That's a really good question. In terms of when do you enjoy a particular language? I think I started a relationship with. I was always. I mean, even today, my biggest critique with my work is, oh, the form is not as great. The technicality of your sentences are not good. The grammatical errors are quite evident, and it was quite a concern when I was young why I was losing so much marks in the grammar section of the English paper. And so I was taken to task by my teachers, and we began doing a daily exercises, and one of those daily exercises included writing. And I think within that space of writing, I flourished the most because I could do what I want in terms of my imagination. So I think it's interesting because while education and pedagogy and all these different ways of they exercise discipline, which English did demand. Like I practice it every day in terms of speaking and learning its grammatical rules, which I still didn't get clearly. I still didn't understand discipline and grammar, but what it did eventually from a daily practice is increase the ruchi, as you would say, the joy of writing and the joy of investing in the imagination, which was effectively what I do today. I write. I'm a writer, so definitely enjoy the language more than anything else. Um, but yeah, that's how I would. Yeah, thanks for that. सेजल, आप बोलना चाहेंगे? तो जैसे मायूक जी ने बताया, तो मेरा भी वही रहा, पर मैं भाषा को हमेशा आइडेंटिटी के साथ जोड़ती हूँ। और मेरे लिए मेरी कम्युनिटी की भाषा या मेरे आसपास की कम्युनिटी की भाषा उतनी इम्पोर्टेंट रही है जितनी कि मेरी खुद की भाषा है। और मैं हमेशा प्रयत्न करती हूँ कि हर एक कम्युनिटी की भाषा को प्रिजर्व किया जाए। और मेरी जर्नी की बात करूँ तो मैंने गुजराती मीडियम गुजराती अपनाया और अपनी खुद की भाषा भी, क्योंकि मैं जिस भाषा में सोचती हूँ मेरी खुद की मदर टंग, मतलब मैं जो मेरी कम्युनिटी की भाषा है राठवी, वो है। तो जब भी शुरुआत में जब स्कूल में थी तब मैं सोचती थी राठवी में,
और बोलना होता था गुजराती में। तो मुझे वहां पे बहुत ही दिक्कतें आती थी कि मैं सोच रही हूँ ये, पर बोलने में राठवी गुजराती में बोलना है तो थोड़ा सेंटेंस गड़बड़ी ये वो था। पर जैसे जैसे मैं गुजराती में और डीप में जाती गई, सीखती गई, तो मुझे और मजा आने लगा। और अभी मैं गुजराती में जब बोलती हूँ तो मुझे इतना, पर जब मेरा कॉलेज में आया और जब मैं इंग्लिश आई तो मेरा सोचने की भाषा बदल गई थी। तब मैं गुजराती से, मैं राठवी से गुजराती पे आ गई थी, और गुजराती में सेंटेंस बनाना और सेंटेंस बना के इंग्लिश में बोलना, तो वो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट रहा। और जैसे मैं अभी हिंदी भी बोल रही हूँ, तो मैं अभी सोच राठवी या गुजराती में रही हूँ कोई कोई सेंटेंस। तो ये जो सोचने वाली भाषा और बोलने वाली भाषा जो है, उसमें तालमेल नहीं बैठता है, तो कहीं ना कहीं मैं खुद का कॉन्फिडेंस कभी कभार खो भी देती हूँ। और मैं देखती हूँ मेरे आसपास मेरे जो अनुभव है उससे कि भाषा इतनी इम्पोर्टेंट चीज है कि छोटे बच्चे के लिए या फिर कहीं जरूरतमंद लोगों के लिए, मैं मेरी कम्युनिटी में देखती हूँ कि कभी उनके मुद्दे होते हैं पर वो जहां तक पहुंचाना चाहते हैं। कभी कभार मैंने ये भी देखा है कि पुलिस स्टेशन में जाते हैं पर उनकी अपनी भाषा ही वो जानते हैं, वो सामने वाला व्यक्ति जो सुनने वाला है वो उनकी भाषा नहीं जानता है, तो वो रिपोर्ट लिखाने में भी कभी कभार बहुत गड़बड़ी हो जाती है, और देरी हो जाने की वजह से कुछ नया समस्या या मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो भाषा इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैं तो चाहूंगी कि हर क्षेत्र में अपने समुदाय के लोगों के आसपास लोकल भाषा बोलने वाले लोग भी, या फिर जो सिस्टम में है वो लोग भी उन्हीं भाषा से आए, उन भाषा को जानते हुए लोग आए, ताकि एक स्मूथली सिस्टम चलता रहे। अभी क्लैशेस भी इसी वजह से हो रहे हैं। और अगर मैं एकेडमिक में देखूं तो जब मेरा एडमिशन लेना हुआ था तो मुझे एक तो इंग्लिश नहीं आती थी, और मुझे इंग्लिश मीडियम में कॉलेज में मतलब इंग्लिश मेन लैंग्वेज था, तो एडमिशन लेने में भी वो बैरियर था कि इंग्लिश आता है तो ही आप एडमिशन ले पाओगे या फिर कैसे कर पाओगे। तो ये एक है कि एकेडमिक क्षेत्र में अगर हम जाते हैं तो पहला एडमिशन फर्स्ट स्टेप होता है, और वहां पे ही अगर हमको कुछ बड़ा सा समस्या दिखता है लैंग्वेज का, तो बच्चे वहां ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि इसी वजह से शायद ड्रॉप आउट रेशियो इंटीरियर एरिया में सबसे ज्यादा भी लैंग्वेज की वजह से ही है। तो ये चीज है। और अगर मेरे दूसरे अनुभव के बारे में बात करूं कि मैं अभी जो काम कर रही हूँ व्यवहार में, जो जिन जिन कम्युनिटी के साथ काम करती हूँ, तो वहां पे मैं देखती हूँ कि उनकी भाषाओं को मैं नहीं जानती थी, मैं नई थी। तो कभी कभार मुझे ऐसा लगता था कि मेरी भाषा सुपीरियर है, या फिर हम कभी कभी मजाक में भी किन्हीं किन्हीं भाषाओं को उपयोग करके उस भाषा का मजाक उड़ाते हैं, या वो भाषा बोलने वाले लोगों का भी मजाक उड़ा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारी भाषाएं हैं मैं जो भी, तो हमको ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि कोई भी भाषा कमतर या ऊपर नहीं है, सभी भाषा इक्वल है। तो मेरे जो अनुभव रहा है, तो अगर मैं ये नहीं समझती कि सभी की भाषा इम्पोर्टेंट नहीं है या मेरी भाषा ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं शायद वो लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती जिन लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ। तो लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए भी भाषा एक मेन इम्पोर्टेंट और इक्वल मीडियम है जिससे हम लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं। थैंक्स सेजल, इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस। और हम इस पे बाद में भी आएंगे कि वो कनेक्ट करने की जगह कैसे बना सकते हैं और एक वो आइडियल जगह कैसे बनेगी। थैंक्स सेजल। दुर्गा, आप शेयर करेंगे? लैंग्वेज इज अ कम्युनिकेशन मीडियम। सो अगर मतलब मैंने ये देखा है एज अ रिसर्च करते समय आश्रम स्कूल में, जो ट्राइबल महिला है, मतलब कम्युनिकेशन माध्यम है जो लैंग्वेज है वो। तो अगर हमारा कोई अपना लगे, अपनी लैंग्वेज जिनको आती है वो लगे, तो ऐसा अपनापन लगता है। मतलब वो लड़कियों से सीखा मैंने, जो आश्रम स्कूल की जो लड़कियां थी, क्योंकि वो वार्डन ने एक एग्जाम्पल दिया कि वार्डन बोल रही थी कि ये लड़कियां जो है ये आपके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल रही है, क्योंकि आपको उनकी गोंडी भाषा जो है वो आती है। हम लोग इतने साल से इनके साथ रह रहे हैं आश्रम स्कूल में,
लेकिन हम लोगों के साथ वो लड़कियां उतनी घुल मिल नहीं घुलती मिलती नहीं, लेकिन आपके साथ बहुत घुल मिल रही है। मतलब ये लैंग्वेज की वजह से हम अपनापन वगैरह लगता है लड़कियों को वगैरह। ऐसा मतलब होता होता है। मतलब मैम ने कितना कितना बड़ा सेंटेंस बोल दिया कि वो मैम शायद आश्रम स्कूल में 20 साल से है, फिर भी मैम से वो लड़कियां उतना घुल मिल नहीं गई थी, और मेरे साथ बहुत घुल मिल गई थी। और अभी अगर इंग्लिश की ये देखे, इंग्लिश का देखे तो मेरा जब मैं नॉवेल पढ़ती हूँ और स्टोरीज वगैरह पढ़ती हूँ तब मुझे अच्छा लगता है इंग्लिश पढ़ना। और इंग्लिश कैसा है ना कि हमें इंग्लिश की वजह से यूनिवर्सल नॉलेज मिलता है। अगर आपको यूनिवर्सल नॉलेज गेन करना है तो इंग्लिश इज अ मस्ट टू लर्न। Thanks, Durga. Actually, on that note, हम I think towards the end of the discussion आना चाहते हैं towards this question कि आपके imagination में अगर एक ideal classroom है, एक ideal curriculum है, where जैसे आप सेजल बात कर रहे थे कि वो अपनापन है, वो भाषा के साथ और as a consequence लोगों के साथ एक रिश्ता अच्छा बनता है, तो वो एक ideal classroom और curriculum जहाँ इंग्लिश या कोई और मेन स्ट्रीम लैंग्वेज और आपकी अपनी भाषा एग्जिस्ट करती है, तो वो सीखने सिखाने का कैसा क्लासरूम, कैसा करिकुलम आपकी इमेजिनेशन में हो सकता है। एंड सेकेंडली, आप किन किन कोई ऐसे अपने खुद की प्रैक्टिस से, अपने रिसर्च से, एक्सपीरियंस से ऐसे कुछ टूल्स हैं जो कि आप उस क्लासरूम में इमेजिन कर सकते हैं? जैसे तेजल, आप वीडियो जर्नलिस्ट हैं, आप वीडियो का काफी इस्तेमाल करते हैं, so in terms of a curriculum, what is your imagination of an ideal classroom where most languages can coexist and also lead to a certain synergy, etc. So Sejal से शुरू करते हैं, then maybe we can move to my own. तो आइडियल क्लासरूम की बात करें तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। मैं जिस भाषा संस्थान के साथ काम करती हूँ वहां पे एक स्कूल चलता है वसंतशाला। तो वसंतशाला में हमारे क्षेत्र के सभी भाषा बोलने वाले बच्चे एक साथ एक रूम में आते हैं। वहां पे टीचर्स जो है वो तीनों भाषा को जानते हैं, तो उनके साथ वो अच्छे से रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। और टीचर्स जो है हर साल कुछ नया कोर्स लेके आते हैं बच्चों के लिए उनकी भाषा में, और बच्चे भी अपनी भाषा में जो भी सॉन्ग्स है, जो भी शीट्स है, बर्ड्स के नाम है, वो सारा वो प्रिपेयर करते हैं वहां पे बैठ के। तो एक एक्सचेंज ऑफ लर्निंग वाला एक प्लेटफॉर्म बनता है जहाँ पे अगर भाषा को अंडरस्टैंड करने वाले लोग या फिर सिखाने वाले लोग या फिर जो आया है हमारे पास उसके पास भी उनकी भाषा के अंदर ही उनकी नॉलेज सिस्टम में उनकी लैंग्वेज में ही एक लर्निंग दृष्टिकोण है, या फिर किसी किसी क्षेत्र किसी किसी चीज के लिए उनका अलग ही मत है। तो मत को समझने के लिए या फिर वो दृष्टिकोण एकेडमिक स्पेस में लाने के लिए भी वो एक भाषा एक बहुत बड़ा मीडियम है। तो एक तो ये चीज है, और वो चीज वसंतशाला में बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। यहाँ पे नाइकी, बारेली, भीली, देहवाली भीली, चौधरी, तो ये सारी भाषा बोलने वाले, राठवी, तो ये सारी भाषा बोलने वाले बच्चे तो जो आते हैं वो अपनी भाषा शेयर करते हैं टीचर्स के साथ, और वो टीचर्स उस भाषा को उसी खुले दिल से स्वीकारते हैं और वो भी अपनी जो नॉलेज है उस भाषा के प्रति तो वो उनके सामने रखते हैं। और फिर उसमें अगर अंडरस्टैंडिंग एक लेवल पे आती है तो फिर वो मेन स्ट्रीम भाषा में जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे गुजरात में गुजराती भाषा है तो फिर वो गुजराती पे आते हैं, या फिर वो इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करने चाहते हैं तो वो इंग्लिश पे आते हैं। तो ऐसे उनका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल उनकी खुद की भाषा में बने, उसके बाद अगर मेन स्ट्रीम भाषा में आए तो एक बड़ा लर्निंग पर्सपेक्टिव या दृष्टिकोण हम देख पा रहे हैं।
दूसरा, मैं मेरे काम के जरिए से अगर मैं बताऊं तो मुझे मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैं चाहती हूँ कि हर उन कम्युनिटी की आवाज को लेके आऊं, हर उन कम्युनिटी की लैंग्वेज को उनकी भाषा में उनके लोगों द्वारा ही रखे जाए, उनके मुद्दे हो, उनकी कोई भी समस्या हो, उनकी कोई भी इम्पोर्टेंट चीज हो, वो यूट्यूब चैनल पे आए उनकी भाषा में ही, ताकि भाषा का डिजिटलाइजेशन हो। क्योंकि भाषा बचाना भी एक मेरा पर्पस है, और भाषा को डिजिटाइज करना ताकि वो आने वाली पीढ़ी के लिए बच सके। तो ये दो चीजों को लेकर मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, आदिम संवाद। तो मेरा मानना भी यही है कि हम हर एक जो ओरल लैंग्वेजेस है, या फिर हर एक जो भाषा है जिनके पास लिपि नहीं है, या फिर लिपि है तो वो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं की गई है, तो वो सारी भाषाओं को बचाना इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक कम्युनिटी के पास अपना खुद का मैनेजिंग सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, उनका नेचर के साथ कनेक्शन है। तो वो आदिवासी कम्युनिटी हो, एससी कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी हो, तो हर एक कम्युनिटी की अपनी भाषा में उनका खुद का नॉलेज सिस्टम है। तो वो नॉलेज सिस्टम भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेन स्ट्रीम नॉलेज का जो भी भाषा का जो भी प्रचलन है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी है। तो वो इम्पोर्टेंस है लैंग्वेजेस का, वो बरकरार रहना बहुत ही जरूरी है, ताकि हम नए नए अपॉर्चुनिटीज, नए नए दृष्टिकोण, नई नई सोच बाहर ला सकते हैं। Uh, Oh, that's a really good answer, Sejal. That was great. How do I reimagine a classroom? I think about language a lot. I'm when I'm writing, when I'm teaching, and I think my whole statement, my whole motto around a classroom is that a classroom should be a space that allows everyone to fail, which is to say that, institutionally and categorically, the classroom is a space to succeed. You go in, you succeed as a student, you succeed to acquire language. You succeed to acquire language in a particular way, with particular grammatical styles, with particular accents, with particular purposes. I think I reimagine the classroom to fail, to show students that language fails in expression, language fails to accommodate for what they're trying to do, and that failure in itself is productive. That kind of sense of that degeneration, if I may call it, is actually a productive way of being. It allows new creative ways to understand, as bell hooks would say. Finding a lacuna means that there's it creates more space for productivity and creativity. So that's how I would imagine a classroom, in terms of how, at least that's what my curriculum constantly stresses. One of the instances I had was, because in the US, when I was teaching, there were a few deaths by suicide that happened very unfortunately during the semester, and we had to understand, death at the end of the day is, perhaps can be, as one of my philosopher professors would say, a failure of life. And how do you address it in a classroom setting? It's difficult, it's challenging, it's pertinent, it's urgent, but it's complicated for a teacher to engage with a conversation about it. But in relationship to life, as in, how do you cope with the stress of getting an A, getting the top marks, and what does it mean to not get that top marks, to get an A or a B minus? And I was trying to engage my students with failure, and how failure is not necessarily a bad thing. And somehow I came up with, like, asking them to think about divorce. I was just like, let's think about this, and mind you, my class is a very Christian classroom in North Carolina, and people were scandalized by the idea of divorce being broached. But all to do is just because something fails doesn't mean it doesn't have any relevance of good in it, doesn't have any of
what do you call it, any meat of and I think that's how I shaped the classroom, in terms of vernaculars being introduced, in terms of new identities being introduced. Perhaps identities fail in constructing the realities of our lives. It's not a bad thing. I feel respecting, like engaging students or teachers and other people or an audience with the idea that you still need to be able to respect and collaborate is, I feel, a very interesting way to look at the classroom. Thanks, Mayu. That was quite a lot to think about, especially the idea of collaboration, the idea of failure, and it's so to say, how does that degeneration come to be something productive? Thanks for that. Yeah. दुर्गा, आप बोलना चाहेंगे? टीचर अगर कोई लैंग्वेज क्लास में पढ़ाना हो तो टीचर को जो है उस लैंग्वेज में पकड़ होनी चाहिए। अगर टीचर को पकड़ है और टीचर और स्टूडेंट जो दोनों है उनमें लैंग्वेज में अगर पकड़ हो तो वो दोनों अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे और वो शिक्षक जो है वो स्टूडेंट के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करने के बाद जो स्टूडेंट है वो सब अंडरस्टैंड करके वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे। उनको मतलब एक तरह से जो टीचर ने है वो अंडरस्टैंड करना चाहिए स्टूडेंट को और उसकी वजह से कम्युनिकेशन उनका अच्छा रहेगा। Thanks, Durga. Any last thoughts by one of you? कुछ और शेयर करना चाहेंगे अपने प्रैक्टिस से, अपने काम से, रिसर्च से, या just any example or any experiences? Or maybe we can move on to questions and then. Okay. Vichita, are there any questions? There are a couple of very lovely comments which we posted here on the chat box. Okay. Paki Pandey says English language teaching is at a crucial juncture. Dismantling the very idea of the traditional classroom is necessary in order to acknowledge the classroom as a dynamic cultural document and process. This panel is important for today's time where classroom spaces are changing. How do we tackle the problem of diminishing the languages, which is a minority that the use of English language has helped create? Yeah, we have one question. How do we tackle the problem of diminishing the languages, which is a minority that the use of English language has helped create? So सवाल ये है कि हम जो जैसे सेजल आप बात कर रहे थे कि जो माइनॉरिटी लैंग्वेजेस, इंडिजिनियस लैंग्वेजेस, उनका यूजेज में जो कमी होता जा रहा है, उसको हम कैसे डील कर सकते हैं? जैसे आप कह रहे थे कि हर एक समुदाय में वो भाषा बोलने का एक जन जरूर होना चाहिए, सिस्टम एक्सेट्रा। तो क्लासरूम के स्पेस में हाउ डू वी डील विद दिस प्रॉब्लम? इफ you दुर्गा और मायंक, anyone would like to take this? तो जैसे मैंने ये वसंतशाला का एग्जांपल दिया था, वही अगर हर एक क्षेत्र में, हर एक प्रादेशिक भाषा में, जो जो प्रदेश में जो प्रादेशिक भाषा या फिर माइनॉरिटी भाषा बोली जाती है वहां पे हो जाए, जैसे कि हर एक प्राथमिक स्कूल में उन प्रदेश के या आसपास के बोलने वाली भाषाओं के शब्दावली अगर उनके लर्निंग में आ जाए, या फिर पहली से चौथी कक्षा या फिर 10वीं तक भी एक कोर्स डिजाइन हो जाए ताकि बच्चे इजीली उस चीज को समझ सके। अगर मैं मेरा यहाँ का एक एग्जांपल दूंगी, अगर मैं वसंतशाला में विजिट के लिए जाती हूँ तो पहले ए मतलब एप्पल होता है, ठीक है, तो बच्चे क्या कहते हैं, ए मतलब आमली, गुजराती में आमली होता है, और फिर उनकी भाषा में ए मतलब आंबोड़ी। तो मतलब ये चीज है कि ए को अंडरस्टैंड करना है, मतलब हमें एप्पल की जरूरत नहीं है, उनकी आसपास की चीजों को भी हम ले सकते हैं ताकि वो इजीली समझ सके। तो वो अगर एकेडमिक स्पेस में आ जाए
तो एक वो अपनी भाषा को भी अच्छे से समझ सकते हैं, उनकी भाषा का प्रयोग भी वो अच्छे से कर पाएंगे। भाषा मिटती कब है? जब उसका प्रचलन कम हो जाता है। अगर हम उस बच्चे को मेन स्टेट की भाषा पढ़ाएंगे तो वो स्टेट की भाषा में आ जाएगा, और वो अपनी जो प्रादेशिक है, मदर टंग है, या फिर अपनी कम्युनिटी की भाषा है, वो कहीं पीछे छोड़ देगा। तो क्या होता है कि वो नॉलेज सिस्टम भी वहीं पे छूट जाता है, उनकी भाषा जो है आगे कभी नहीं बढ़ जाती। तो नॉलेज सिस्टम को आगे कैसे लाया जा सकता है, उस पे हमें काम करने की जरूरत है। अगर वो काम अगर हम कर पाएंगे तो शायद उनकी भाषा भी बच जाएंगी, उनका नॉलेज सिस्टम भी बच जाएगा, हमारे साहित्य जगत को और एजुकेशन सिस्टम को या फिर एकेडमिक स्पेस को एक नया दृष्टिकोण मिल जाएगा, एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा चीजों को समझने का। तो उसमें कुछ ये नहीं है, कुछ कमतर नहीं हो जाएगा, उसमें और बढ़ावा हो जाएगा। तो ये करने की जरूरत है। अगर हम मैं अगर राठवी भाषा बोलती हूँ तो मैं राठवी भाषा का प्रचलन ही बंद कर दूंगी तो राठवी भाषा को कौन जानेगा? अगर मैं पारसी कम्युनिटी के साथ काम करती हूँ और उनकी भाषा मुझे आती है, तो मैं अगर पारसी कम्युनिटी की भाषा के बारे में यहाँ पे बात नहीं करूंगी तो उनको कौन जानेगा? तो ये डिस्कशन का पॉइंट बनाने की जरूरत है, उस भाषा में डिस्कशन करने की जरूरत है। और दूसरा ये है कि हम कभी कभी ये समझ लेते हैं कि जो मेन स्ट्रीम की भाषा है या फिर जो स्टेट की भाषा है वो सर्वोपरि है, और दूसरी जो प्रादेशिक भाषा है वो कमतर भाषा है, या फिर वो भाषा भले ही कंप्लीट हो पर कभी कभी उनका इम्पोर्टेंस हमें खुद ही कम कर देते हैं। तो इम्पोर्टेंस भी बढ़ाने की जरूरत है कि सभी नॉलेज सिस्टम में, सभी भाषा में इक्वल नॉलेज सिस्टम है, उनका भी एक अलग से दृष्टिकोण है। तो वो इम्पोर्टेंस बढ़ाने की जरूरत है, और वो बच्चों से ही हो सकता है। Thanks, thanks, yeah. Yeah, I think what I want to add to this is that I am a agent of pleasure. So I'm stealing Paramita Vora's tagline, but my whole philosophy around this is that we need to make language pleasurable, which is a great question you had asked in the second question you asked. What is the is there one of the most I really hated dreaded going for Hindi classes so much because the only reason was I didn't know the difference between choti and badi. That's the only reason. It confused me. It took all of my marks away. I would get Anywhere does 90% that, on, yeah. yeah, I got 90% everything else and I would get 50% in Hindi. And that would ruin my percentage by a huge margin. And it was dreadful. But I love Hindi music. I love the idea that Hindi is this amalgamation of so many different kind of scripts. When I was in college, I understood that Devanagari is interesting. It has history. It has dance, and there's so many other ways to live the language than just to be told that it needs to be granthon mein hi likha it shouldn't be literature. Literature is not the only way to access language. It is through it comes in so many varied forms. And I think that's what I tell people when they ask me about Assamese, and I'm like, I think we need to invest in different ways of engaging with the language than just through text, which is to say through songs and dances and all these different kind of ways. So I would say increasing the pleasure principle to acquiring a language would be the way to move forward with that. But I might be wrong, so don't quote me on it. I definitely will. Durga, any last thought? Yeah, yeah. I want to share something. Uh, yeah, incidents of जो आदिवासी लोग जो है, जब मैं एज अ ऑब्जर्वेशन मैंने देखा है कि जो अपनी भाषा कभी कभी लोगों का जो बहुत सारे लोग हैं उनमें नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो टर्म्स है आदिवासियों की वो अलग है लोगों के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पे जब मैं MSW में थी तो मेरा क्लासमेट ऐसा ही डिस्कशन चल रहा था, तो वो बोल रहा था कि आदिवासी लोग जो होते हैं वो जो बड़े बड़े चाकू लेके रहते हैं, बड़े बड़े भाले बीच में रहते हैं और लोगों को मारते हैं, वो उसे मतलब आदिवासी बोलते हैं। ऐसा उसका जो मीनिंग था, मतलब लोगों के मन में बोलने का मतलब ही मेरा
कि कंसेप्ट ये बनी है कि आदिवासी लोग जो है वो सबसे अलग है, सबसे अलग रहते हैं, जंगल में रहते हैं, ऐसा उनको उनको बोला जाता है। इसलिए ऐसे कई लोग हैं जो सोशल गैदरिंग में हम आदिवासी हैं तो आइडेंटिटी वगैरह छुपाते हैं और अपनी भाषा में बात करने से भी वो डरते हैं, मतलब डरते इन द सेंस कि वो बात नहीं करना चाहते। इस वजह से उनकी जो भाषा है वो लुप्त हो रही है और कोई उसका बोलता भी नहीं है। तो और हम जिस एरिया में अभी वो बहुत सारे जो सो कॉल मेन स्ट्रीम जो बोला जाता है वो अगर सो कॉल मेन स्ट्रीम में आने के बाद वो लोग पूरी तरह से अपनी लैंग्वेज से अलग हो जाते हैं और अपनी जो लैंग्वेज है वो उनको आती ही नहीं है। इससे मेरे रिलेटिव्स जो है उनको किसी किसी को आती नहीं नो जो पुरानी जनरेशन है उनको तो आती थी पर अभी नई जनरेशन के लोगों को नहीं आती है, क्योंकि हमारी भाषा में जो शिक्षा जो है वो शिक्षा भी नहीं है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा शिक्षा से वंचित इन द सेंस कि हम पीछे है। जैसे कि रमनिका गुप्ता जो है वो अपनी किताब में बोलती है कि केरला पीपल जो है वो शिक्षा में आगे है क्योंकि उनकी जो प्राइमरी शिक्षा है वो उनकी भाषा में है। पर हमारी जो भाषा है उसमें हमारा मतलब हमारी शिक्षा नहीं है। इस वजह से जो है ड्रॉप आउट रेशो भी बहुत कम है, क्योंकि मराठी सीखना फिर सॉरी अपनी भाषा आना उसके बाद मराठी सीखना फिर इंग्लिश सीखना हिंदी सीखना इट इज अ डिफिकल्ट टास्क टू जो मगर इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है अगर किसी को लगता है कि हमको आता नहीं है। तो इसकी वजह से भी बहुत ड्रॉप आउट रेशो होता है लैंग्वेज की वजह से भी। थैंक यू दुर्गा। किसी और की कोई और सवाल या मे बी think one second, I'm There's just one checking. more question, ma'am. Yeah. Can we really Follow-up assess question. the practicality of language when it comes to language teaching? Can we escape tackling it as a scientific study? How do we introduce the idea of pleasure here? Asks Pankhi Pandey. yeah. Maybe Mayo, do you want to take this? Yeah, of course, of course. Yeah. This is that's a really good question. How do you escape the technicality of language? And it's so interesting how, like, language as a technical phrase within the framework of technicality is an interesting construct in itself. But I think the panelists are very involved in understanding how does language connect. So I think it's a difference in discourse in a sense, right? Like when English language instructors are teaching, which I was teaching, I was a composition instructor at NC State. I'm engaging students with how do you write a paper? How do you write a paper in a way that is engaging, one, but also is grammatically right? Honestly, I had to sacrifice some of the grammatical concerns in order to understand what language did when you communicated in a way that is emotional, passionate, and all these other things, which I think English language instruction constantly eschews. So perhaps I might be a bit more rookie and hippie about it, but there is some advantage in teaching language that enables people to be more than to ask them to how should I say, conform to ideas of what technical language or language means. At the end of the day, you don't use the language that the Latinate British or the colonized British are using. It's transformed. It's become different. It's become, I shouldn't use the word vernacular, but it's become interesting. So I think we need to lean into the idea that language will change and the idea of technicality will also change with that kind of function of the interaction between the acquirer and the instructor. So I think that's how I would introduce my pleasure principle here. But yeah. Thanks. And it also ties up to what Sejal was saying, ना कि छोटी छोटी चीजें जैसे चिड़िया की आवाज या बर्ड के बारे में
पानी की या कोई गाना. So किस तरह आप everyday में pleasure principles को introduce करते हैं? So learning any language, yours or so-called mainstreams, or something that you really have to learn just because you have to pass the grade, it really doesn't have to be a drab, right? It can incorporate joy in the everyday. So I think that's a great note to end on. Do we have any other questions? Or maybe we can just then wrap it up. Vijita? Yeah, I don't think we have any more questions. Okay. So I think it was quite interesting to see different people coming from different backgrounds, different areas of practice, both learning and teaching language in different ways, come together and spell out what it means to imagine a classroom, which is incorporating different languages and teaching and learning languages. So from what Sejal said कि भाषाओं को digitize करना जरूरी है, especially indigenous languages का, to Mayuk talking of the pleasure principle and Durga spelling out in like very succinct terms कि actually में जो student है और teacher है उनके बीच में अपनापन होना चाहिए for a classroom space to sort of be egalitarian, etc. So I think that's a great note to end it on. And thank you, Sejal, thank you, Mayu, thank you, Vijita, thank you, Durga, for helping us facilitate this today. Thank you, Asta, so you, much for ma'am. organizing this for us. Thank you, Sejal, Durga, and Manu for joining us. We hope this is just the beginning of the many collaborations we look forward to having with the Third Eye and with each of you. Thank you very much. And also, Sejal, Mayuk, and Durga, all three of them have produced work for the Third Eye and for other platforms too. So you all can email us, or we can send you links to their work, etc. It will be, I think, a great way to engage with what they've brought today to the table. We could share their writing on our conference material package that we are making. Yeah, If you could email the writing to us, we can send it off to all our participants. Yeah. Thank you so much. Thank you. Okay. Thanks, Durga, Sejal, Mayu. Bye. Thank Bye. you. Bye. Thank you so much for joining us, everybody. Tomorrow is the last day of our conference. Tomorrow, day 3, we begin at 8:30 a.m. at St. Joseph's University campus with a workshop by Professor Nadika on City in the Classroom. It begins at 8:30 at the university campus, Dino Billy Hall, St. Joseph's University. At 10, we have a plenary online where we will be joined by Professor Dr. Charles Stone from the Seattle University. And then at 11:30 a.m. by Ezra Ostaran from Turkey. Our last day tomorrow is at 10. Thank you for joining.